Good morning, guys. My name is Harvinder. You are watching HS Sandhu Education Zone. After a long big break, I'm again with all of you guys with new content, new videos, and new starting. So, guys, I hope you all will enjoy the videos. So, today video I'm just going to talk about very different topic which is suggested by my friend. He told that he had this topic in his final IELTS exam. So he told me to make an video on it so that other people can also be familiar with the topic. So let's start the video without wasting any time. So guys, this is not only important topic for the student who are just preparing for IELTS exam, but also all those people who want to raise well-behaved children and respectful children. Also the people who want to know about the children lifestyle. I'm also going to translate in Hindi language so that the student who are from India and have some difficulty in understanding the language, they can also understand it in better way. So guys, let's take a look at the question. Some parents buy their children whatever they ask for. कुछ मम्मी पापा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खरीद देते हैं जो कुछ भी वो चाहते हैं, एंड अलाउ देयर चिल्ड्रेन टू डू, और वो करने देते हैं वट एवर दे वांट, जो कुछ भी बच्चे चाहते हैं वो करने देते हैं, जो कुछ भी बच्चे मांग रहे हैं उनको खरीद देते हैं, जो कुछ भी बच्चे कर रहे हैं उनको करने देते हैं. कुछ मम्मी पापा इस तरह के होते हैं. इज़ दिस ए गुड वे टू रेज चिल्ड्रन? क्या ये अच्छा तरीका है परवरिश करने का? वट कॉन्सिक्वेंसेस कुड दिस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हैव फॉर चिल्ड्रन एज दे गेट ओल्डर? क्या नतीजा होगा अगर इस तरह की परवरिश होती है बच्चों की जब वो बड़े होंगे? जब बच्चे बड़े होंगे तो क्या नतीजा निकलेगा अगर इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होगी, तो अगर इस तरह की परवरिश होगी तो. सो ये हमारा क्वेश्चन था. दिस वाज द क्वेश्चन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, because the format is very important part in the essay writing. So whenever you are going to write down an essay, first of all, that's a major thing to understand is the format. So let's take a look at the format. First of all, you have to write down the introduction part, and the second one is body paragraph number 1. The next is body paragraph number 2, and if there is a need, then you can write down the body paragraph number 3 as well. So the last paragraph will be conclusion. So this is the simple format of the essay writing which you must understand before doing a essay writing. So we are going to start the introduction part. Admittedly, modern socio-psychological research has highlighted the core issue of parental role and the parental attitude in bringing up children. माना जाता है कि जो मॉडर्न सोशियो साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसने ये हाईलाइट किया है कि जो मम्मी पापा का रोल होता है, जो उनकी भूमिका होती है, जो उनका एटीट्यूड होता है बच्चों की परवरिश में, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वो सबसे बड़ा इशू होता है. इट इज़ ट्रू डैट, यह सच है कि सम पेरेंट्स आर हाईली परमेसिव, कुछ माँ बाप ज़्यादा ही दयालु होते हैं, एंड टेंड टू स्पॉयल देयर चिल्ड्रेन थ्रू देयर पैम्परिंग स्टाइल, और अपने बच्चों को ख़राब कर बैठते हैं अपने लाड़ प्यार वाले तरीके से. पैम्परिंग स्टाइल का मतलब लाड़ प्यार वाला तरीका, लाड़ प्यार वाली स्टाइल. हाउएवर, हालांकि इट डजंट सीम टू बी अ गुड पेरेंटिंग स्टाइल, यह एक अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है, एंड कैन हैव रेंज बोथ ऑफ नेगेटिव एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर चिल्ड्रन. इसके नकारात्मक और एक लंबे प्रभाव बच्चों की लाइफ पर होते हैं. लंबे प्रभाव का मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ ये सारी चीज़ें फिर चलती रहती हैं. सो ये नकारात्मक होते हैं, लंबे प्रभाव बच्चों के ऊपर होते हैं अगर इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होगी उनकी तो. So this was the introduction part which we have discussed, and now we are going to move second paragraph. This is first BP, we can say the body paragraph number 1. So we are going to start the body paragraph number 1. To begin with, those who disapprove the permissive parenting believe that, वो लोग जिन्होंने लाड़ प्यार वाले तरीके को नाकारा है वो यह मानते हैं कि if parents want to raise respectful and well-behaved children, a certain amount of discipline is necessary. अगर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे रिस्पेक्टफुल हों, वेल बिहेव्ड हों, अच्छा व्यवहार करने वाले हों, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो डिसिप्लिन है बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, दोज हु हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रेन, जिनके पास अनुभव रहा है बच्चों में काम करने का या बच्चों के साथ काम करने का. असर्ट, असर्ट का मतलब होता है जोर दे के बोलते हैं, डैट
द क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड बाउंड्रीज आर नेसेसरी फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ। बच्चे की वृद्धि के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड बाउंड्रीज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोर ओवर, और क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू से नो चिल्ड्रेन व्हेन दे मिसबिहेव और ट्राई टू पुश अगेंस्ट दोज बाउंड्रीज। अगर उन बाउंड्रीज को बच्चा क्रॉस कर रहा है तो माँ बाप के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपने बच्चों को नो कह सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो मिसबिहेव करते हैं और पेरेंट्स देख भी रहे हैं कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं, तब भी उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपने बच्चे को नो कह पाएं कि बेटा ना करो ऐसा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चा आपका कोई हद पार कर रहा है, इफ़ चाइल्ड इज गोइंग टू क्रॉस द बाउंड्रीज, सो पेरेंट्स मस्ट हैव करेज टू से नो टू देम, ताकि वो लोग उस बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें, बच्चे जो है बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें और बियॉन्ड द लिमिट ना जाएं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो टू देम। दिस इज़ नॉट ओनली हेल्प यंग पीपल टू रेगुलेट देयर डिज़ायर, ये ना केवल उनकी डिज़ायर को रेगुलेट करेगा एंड डेवलप सेल्फ कंट्रोल, और बच्चों के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल भी पैदा करेगा, सेल्फ कंट्रोल भी डेवलप करेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, पेरेंट्स हु डू नॉट अपोज, जो लोग इसके उलट होते हैं, कंसिस्टेंटली गिव इन टू देयर चिल्ड्रन डिमांड्स, और अपने बच्चों की डिमांड में गिरते रहते हैं, आर एक्चुअली डूइंग मोर हार्म देन गुड, वो अपने बच्चों को ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं, अच्छा करने की बजाय उनको ख़राब कर रहे हैं, और बल्कि उनको बहुत ज़्यादा ही हार्म कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद वो अपने बच्चों का बड़ा भला कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भला नहीं होता, वो बहुत बुरा होता है। ठीक है, वो बच्चों को ख़राब कर रहे हैं अपने उस स्टाइल से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे आर जस्ट फॉलिंग देयर चिल्ड्रन रेदर देन बीइंग काइंड टू देम। वो अपने, उनको लगता है कि वो बच्चों के साथ बड़ा दयालु हैं, दयालु नहीं है बल्कि अपने बच्चों को गिरा रहे हैं और नीचे उनका जो मनोबल है उसको और गिरा रहे हैं, बच्चों को और ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं, वीक बना रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। सो दिस वॉज द बॉडी पैराग्राफ नंबर 1। वी हैव रिटन इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट and after that body paragraph number 1, and now we are going to create body paragraph number 2, in which we are going to continue our detail. So let's begin the body paragraph number 2. As a corollary, it means as a result, the children of indulgent or lenient parents are likely to grow up with several negative personality traits. जो ऐसे लीनियड पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे नकारात्मक जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट डेंजर इज दैट, और सबसे बड़ा खतरा क्या है, दीज चिल्ड्रन विल बिकम सेल्फ सेंटर्ड अडल्ट्स। ऐसे लोग सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड अडल्ट मतलब सेल्फिश हो जाते हैं, हु शो लिटिल कंसिडरेशन फॉर फीलिंग्स और नीड्स ऑफ अदर, जिनके दिमाग में दूसरों के प्रति कुछ नहीं होता, दूसरों के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई फीलिंग नहीं होती उनके अंदर, दूसरों की फीलिंग्स के लिए उनके पास कुछ नहीं है, दूसरों की नीड्स के लिए उनके पास कुछ नहीं है। कुल मिला के वो एक सेल्फिश, जहाँ कह सकते हैं स्वार्थी हो जाते हैं। द वन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एटीट्यूड कुड बी डैट, और ऐसे एटीट्यूड का एक कॉन्सिक्वेंसेस यह होता है कि दीज अडल्ट्स आर अनेबल टू वर्क सक्सेसफुली इन टीम्स विद अदर, ये दूसरों के साथ टीम में काम करने के लायक नहीं होते, काम नहीं कर पाते हैं। सेकेंड नेगेटिव ट्रेट्स इन सच पीपल कुड बी इम्पल्सिवनेस, और दूसरा जो नकारात्मक पहलू है ऐसे लोगों के अंदर वह इम्पल्सिवनेस होती है, जो बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेते हैं। अ पर्सन हु हैज़ नेवर लिव्ड विद एनी बाउंड्रीज इज लाइकली टू लैक ऑफ पेशेंस टू केयरफुली कंसीडर ऑप्शन बिफोर मेकिंग डिसीजन, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं ऐसे लोग जो बिना किसी बाउंड्रीज़ के रहे हों, जिनका जो पालन पोषण है, जहाँ जिनकी जो कह सकते हैं ब्रिंगिंग अप है वो बिना किसी बाउंड्री से अगर हुई हो, तो ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, वो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखते किसी भी डिसीजन को करने से पहले। दिस में लीड फॉर एग्जाम्पल, और ये चीज़ें किधर लेके जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपल्सिव शॉपिंग, बिना सोचे समझे सामान खरीदना, अनवॉइस फाइनेंशियल डिसीजन, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना, कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले लेना, और इवन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और यहाँ तक कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। सो गाइस, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड
द बाउंड्रीज आर वेरी नेसेसरी टू ग्रो अ चाइल्ड। किसी बच्चे को ग्रो करने के लिए बाउंड्रीज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस ऐसे राइटिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव द फाइनल पैराग्राफ, दैट्स अ कंक्लूजन. In this paragraph, we are just going to summarize our information. Whatever we discussed above, we are just going to summarize in the last paragraph, that is conclusion paragraph. So we are just going to conclude our information in the last. So let's begin the conclusion part. In conclusion, on the basis of arguments presented above, it can be reiterated that it is imperative for parents to develop not a sentimental approach but also a way out to help their children develop self-control and respect for others. जो भी कुछ ऊपर बताया गया है, अगर उसको दोहराया जाए तो माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों के लिए सेंटिमेंटल अप्रोच ना रखें, बच्चों के लिए भावुक मत हुआ करें. अगर बच्चा रो दिया तो ऐसा नहीं कि वो भी रो दें, जो बच्चे ने मांगा उसको लेके दे दें या बच्चे को करने दें जो उसका मन करता है, ऐसा ना करें. ठीक है, ऐसा अप्रोच ना रखें, बल्कि एक ऐसा वे आउट रखें जिसमें बच्चों के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल पैदा करें. वो बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल क्रिएट करें और रिस्पेक्ट उनके अंदर क्रिएट करें कि वो लोगों को रिस्पेक्ट दे सकें. सो ऐसा वे आउट क्रिएट करना चाहिए. द परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल डजंट सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव. और जो लाड़ प्यार वाला तरीका है ऐसे ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट नहीं करता है. द फाइनल थिंग दैट आई वांट टू ऐड इन दिस, द पैम्परिंग स्टाइल नीदर यूजफुल फॉर पेरेंट्स और चिल्ड्रेन नॉर फॉर द सोसाइटी. Hey guys, if you really like my video, don't forget to subscribe my channel and click on the like button so that I can make some more informative content for all of you. Thank